students. Today we will do chapter 3rd of economics. Chapter is money and credit. In this chapter we will do the following things. First, introduction. Second, money as a medium of exchange. Third, modern form of money. Fourth, known activities of bank. Then, meaning of credit. Then, term of credit. Sources of credit in India. Credit as a vicious trap. Self-help groups and cooperatives. Now, introduction of the lesson. Money is essential and people want to get as much as they can. Money हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और लोग जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं. Let us see why it is essential. मनी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि a transaction is done with the help of money. जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं डेली लाइफ में, जितना लेन देन होता है वो मनी की हेल्प से होता है. It is given as gift or prize for good work. और मनी को अच्छे काम के लिए भी एज ए गिफ्ट यूज कर सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग इज डन बाय क्रेडिट कार्ड और मनी. जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है वो भी हम मनी के थ्रू करते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं. इट इज ए स्टेटस सिंबल. और क्या है, इंसान का स्टेटस भी मनी से बनता है. पीपल सेव मनी फॉर अनसर्टन फ्यूचर. लोग जो है अनसर्टन फ्यूचर के लिए भी मनी सेव करके रखते हैं. जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है इन फ्यूचर, या किसी को बीमारी लग जाती है कोई, उसके लिए भी मनी लोग सेव करके रखते हैं. वी हैव सीन वेरियस यूजेस ऑफ मनी. हमने देखा है जो पहले जितने भी इमेजेस देखी उसमें देखा कि कितने यूजेस होते हैं मनी के. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो द मीनिंग ऑफ मनी. पहले हमने इसका मीनिंग देखना है क्या है. Let us begin. First you see the video of the money. See the video. Money as a medium of exchange. Why transactions are made in terms of money? Well, the answer is very simple. People holding money can easily exchange it for any commodity or service that they want. Transaction through money is a new phenomenon. Otherwise, earlier, transactions were done through barter system. Now the question arises, what is barter system? It is a system in which goods are exchanged for goods. It is also known as commodity for commodity economy. There are certain demerits of barter system like no store of value, no possibility of future payments, no common unit, and lack of double coincidence of wants. Let's take the case of a balloon seller. He wants to buy vegetables in exchange of balloons. But the vegetable seller does not need balloons. He wants to exchange vegetables with fish. On the other hand, fisherman wants balloons, but he does not have vegetables to exchange with balloons. So here, we have concluded that both the parties have to agree to sell and buy each other's commodities. This is known as double coincidence of wants. Therefore, in order to overcome the problem of barter system, money was invented. We buy different commodities in exchange for money. Since money is something that acts as an intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange. Have you seen animation, students? हाँ. The modern form of money includes
currency and deposits with. Have you seen animation, students? How money used for medium of exchange? Okay, let us start. Next topic, modern form of money. Modern form of money क्या है? करेंसी, करेंसी में पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स हैं. डिपॉजिट विद बैंक, डिपॉजिट विद बैंक जो है वो भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है. पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये सब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है. हाँ, पहले ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी क्या था? गोल्ड कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे, फिर और कई चीज़ें थी जिसको हम, जैसे कॉवरीज होती थी, कौड़ियाँ जिसको बोलते हैं, वो भी हम यूज़ करते थे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी में. लेकिन अब जो है वो क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में पेपर नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं. वाई वी यूज करेंसी? द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. हम करेंसी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने लीगली इसको ऑथोराइज, अप्रूवल दी है करेंसी को, इसलिए हम करेंसी जो है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द इशुअर्स ऑफ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी इशू करने के लिए जो है मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है. Let us legalize the use of rupee as a medium of exchange in the country. हम कैसे रुपी को यूज कर सकते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? कैसे लॉ ने लीगलाइज किया है इसको, कैसे अप्रूवल दी है हमारे देश में मनी को? डिपॉजिट विद बैंक, जो हम बैंक में जमा करवाते हैं. पीपल नीड ओनली सम अमाउंट फॉर डे टू डे नीड्स, द रेस्ट दे कैन डिपॉजिट इन द बैंक. लोगों को डेली की जरूरतों के लिए बहुत कम पैसे की जरूरत होती है और बाकी पैसे जो है लोग बैंक में जमा करवा देते हैं. बैंक इन बैंक्स इन रिटर्न गिव्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट. जो भी डिपॉजिट बैंक में जमा करवाया जाता है तो बैंक उसके बदले में हमें इंटरेस्ट देता है. फॉर इंस्टांस, बैंक में जो डिपॉजिट करवाया गया पैसा उसका इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है. या फिर हम डिपॉजिट को कैसे यूज कर सकते हैं और पैसे को कैसे यूज कर सकते हैं? अपनी डे टू डे चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, जो भी हम डे टू डे कंज्यूम करते हैं चीज़ों, उनको यूज करने के लिए हम पैसे को यूज कर सकते हैं. बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग मनी इन द बैंक्स. बैंक में जब हम पैसे रखते हैं तो उसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट है, मनी इज केप्ट सेफ विद द बैंक. पीपल अर्न इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट. पीपल कैन विदड्रॉ मनी व्हेन नीडेड. पेमेंट कैन बी मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश. सबसे पहले तो हमारा पैसा बैंक में सेफ रहता है अगर हम जमा करवाते हैं. दूसरा, हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है इस पे. तीसरा जो है, हम जब भी ज़रूरत पड़े पैसा निकलवा सकते हैं. और जो पेमेंट है कैश की बजाय चेक से भी कर सकते हैं.